Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the studio. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode where I'll be taking your emails and Premji will be giving you the best remedies, guidance, and solutions as per your birth chart. So let's find out who sent in the first email for today. और प्रेम जी हमारी पहली ईमेल जो आई है दिस फ्रॉम अ लेडी कॉल्ड कैथरीन हर डेट ऑफ बर्थ इज March 6th, 1993, place of birth is Havana, and time of birth is about 12:30 in the afternoon. She's very concerned to find out the relationship that she's in. Is this a good match for her? And if not, do you see her happily settle down with somebody else, or she should pursue this current relationship? She needs your help and guidance. Catherine, if you are June 6, 1993, Havana, Cuba, इनका 12:30 AM का बर्थ है. शी इज़ ए जेमिनाई राइजिंग और इनका मून साइन जो वो कैंसर है. जेमिनाई का लॉर्ड होता है मरकरी एंड इनकी जो राशि का लॉर्ड है वो मून है. एंड शी इज़ गोइंग थ्रू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम ऑफ हर लाइफ जिसे हम कहते हैं. शी इज़ इनटू बेसिकली सूर्य दशा एंड सन इज़ गोइंग थ्रू ए जुपिटर फ्रॉम लास्ट ईयर अप्रैल. जी. And Jupiter in the female is a male planet, grandfather, brother, husband and the child. And जब Jupiter आता है तो it means it gives you a right relationship in the life. So whoever she is dating or relationship में है तो basically वो कामयाब हो जाएगा, successful रहेगा Okay. इनकी लाइफ में. And the only thing which I see in the शी इज़ ए मांगलिक, तो इनके जो पार्टनर है वो भी मांगलिक होने चाहिए. एंड इफ़ दैट अलाइंस तो देन देयर इज़ नो इशू कि अगर ये जिस रिलेशनशिप में है तो इनको, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट 2 years जो हैं फ्रॉम लास्ट ईयर अप्रैल टू 2026 अप्रैल तक का जो टाइम है, इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हर टू सेटल डाउन इन द लाइफ. एंड she has sun and Saturn in the destiny house. Suraj Shani साथ में है with the Mercury. Sometime in work wise, whatever effort that we put it in, we don't get the same effort back. Right. And जिसकी वजह से we struggle and कई बार अपने profession को लेके भी हम confuse रहते हैं. So then, Premji, what would you recommend her as remedies or any stones that would suit her? She should wear a emerald 5 to 6 carat का अपनी little finger में वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, तो जिससे जो इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है द राइजिंग लॉर्ड विल बी वेरी स्ट्रांग. एंड मंडे शी शुड डू सम सॉर्ट ऑफ ए प्रेयर और स्टे वेजिटेरियन, व्हाटएवर द गॉड शी फॉलोज. इफ शी कैन डू सम सॉर्ट ऑफ ए मेडिटेशन सो दैट कैन ब्रिंग ए वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट. एंड सोलर इक्लिप्स है तो इनको ब्लाइंड लोगों को हेल्प करते रहना चाहिए once a year. इफ शी डोनेट सम मनी टू द ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन, that can bring her a lot of positive impact in her life. Thank you, Premji. So like Premji is advising you that he sees that you're a Manglik. So depending on the person that you're with in a relationship should also be a Manglik. Otherwise, there are other remedies that Premji recommends. However, he believes wearing an emerald will really transform your life. You also need to be vegetarian and of course follow the remedies that Premji has mentioned because the relationship that you're in is meant for you. Eventually, you are going to have a very happy, settled married life. और दोस्तों अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर कोई प्रोफेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और फोकस बना के रखिएगा. स्ट्रेस की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा. थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अंदर. फाइनेंशियल गेन पॉसिबल है पर थोड़ा स्पेंडिंग का ट्रैक रखिएगा. और मंडे और थर्सडे जो हैं थोड़े पॉजिटिव सरप्राइजेस भी लेके आ सकते हैं. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए थोड़ी स्टडी प्रोग्रेस होगी आपके करियर के अंदर, बट ओवर एक्सर्टिंग मत करिएगा, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा.
मॉडरेट एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी एनर्जी भी बनी रहेगी। फैमिली लाइफ आप लोगों की स्टेबल रहेगी, बट थोड़ा माइंडफुल ओवर जो है थोड़ी परेशानी या सोशल गैदरिंग हो सकती है लाइफ में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होराइजन पे है, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस वीक के अंदर। वेडनेसडे एंड संडेज जो है काफ़ी फेवरेबल है किसी चीज़ की नई शुरुआत करने के लिए। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, फोकस बना के रखिएगा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि नेटवर्किंग स्किल से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेक श्योर कि मैनेज करिएगा स्ट्रेस को थोड़ा अच्छे तरीके से। टेंशन थोड़ी बढ़ जाएगी रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अंदर, बट जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपको हेल्प करेगा रिजॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आएगी आप लोगों के लिए, स्मॉल फाइनेंशियल गेन होगा, लेकिन जो भी काम करेंगे उसको थोड़ा सोच समझ के और सावधानी से करिएगा। ट्यूसडे एंड फ्राइडे जो हैं काफ़ी फेवरेबल है अगर आप किसी तरह का भी डिसीजन लेना चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। थोड़ी अटेंशन अपनी इमोशनल वेलबींग पे भी दीजिएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा, मेडिटेट करिएगा। ये काफ़ी इमोशनल वीक है, कनेक्शन विद द फैमिली एंड लव्ड वंस। रोमांस जो है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है। थोड़ा कॉशियस रखिएगा फाइनेंसिस को लेके, अनएक्सपेक्टेड जो है एक्सपेंसेस जो हैं थोड़े बढ़ जाएंगे। मंडे एंड सैटरडे जो हैं काफ़ी अच्छी मोमेंट्स लेके आएंगे लक की आप लोगों के लिए। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर शो, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. Before we went on to the break, we were talking about the emails because today is a very special email dedicated episode where I'm taking the emails and Prem ji is giving you the best remedies, guidance and solutions. Let's find out who sent in the next email. और Prem ji, अगली email जाए है. This is from Mr. K. Date of birth is Jan 28th, 1972. Place of birth is Patiala, Punjab. Time of birth is 4:34 early morning. He wants to know about the financial future as he's going through a very hard time from the last year. He's lost a lot of money and he's into a lot of debt, and his business is also not doing very well. He feels that he's in Antardasha that is changing. So he wants to know when will the time be better for him and what does the future hold for him. देखिए मिस्टर के, अगर आप जनवरी 28, 72 इनका पटियाला पंजाब 4:34 AM का बर्थ है जी। इनका धनु लगन है जिसमें इनकी मिथुन राशि है। धनु लगन का लॉर्ड होता है, गुरु राशि का लॉर्ड है इनका बुध, मतलब सजिटेरियस राइजिंग है, मून साइन इनका जेमिनाई है। धनु लगन का लॉर्ड होता है गुरु, जो इनकी जन्म पत्री में इनके फर्स्ट हाउस में ही बैठा है। कहते हैं लगन में बैठ जाए गुरु तो बेसिकली एग्जॉल्टेड होता है, 1 लाख दोष भी माफ़ हो जाते हैं। अच्छा। तुम्हारे को दशा बुध की चल रही है। बुध जो है बेसिकली इज एनिमी प्लैनेट, क्योंकि गुरु को सपोर्ट नहीं करता। और जैसे बुध लाइफ के अंदर शुक्र में जाएगा, सूरज में जाएगा और चंद्र में जाता है, तो वहाँ पे इनको परेशानी क्रिएट करता है। बट 7 अप्रैल से यानी कि नेक्स्ट मंथ से इनका जो है बेसिकली मरकरी विल बी आउट ऑफ द मून एंड मंगल आ जाएगा। मार्स इज़ गुड फॉर द मनी एंड बेसिकली लाइफ में जो इनकी जो स्ट्रगल चल रही है उसमें थोड़ा बेटरमेंट होना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियली चीज़ें इनके बिजनेस में चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, बट एट द सेम टाइम इनकी हेल्थ में इनको परेशानी रहेगी, क्योंकि मार्स एंड मरकरी कॉजेज लॉट ऑफ इन्फ्लामेशन, सर्कुलेशन इश्यूज आर टू। फाइनेंशियली चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लेकिन एट द सेम टाइम हेल्थ में इनको परेशानी रहेगी। बट अप्रैल 7 के बाद से इनका जो टाइम है वो 2031 तक जो है बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाएगा। सो वॉट एवर द लॉसेस जो काम में बेसिकली जो पास में प्रॉब्लम्स रही हैं वो सारी इनकी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। So then Premji, any remedies for him to do and what kind of business should he go into? Business wise, Jupiter is more related to food, beverages, hospitality, real estate से जुड़ा हुआ है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में हैं, जैसे लेंडर हैं या कोई टेक्निकल काम में है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाता है।
कई बार you can also do the property flipping and those kind अच्छा. of a things also can bring a Right. good impact. कुंडली में सूरज और राहु भी साथ में है, तो सूर्य ग्रहण है, तो जिसकी वजह से क्या है कि जल्दी सक्सेस भी मिलता है, पर एट द सेम टाइम जल्दी जो है फेलियर भी लाइफ में आ जाता है. तो कभी एक स्टेबल जर्नी नहीं रही है इनकी लाइफ की. So any stones for him to wear or any other remedies? इनको एक येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपने इंडेक्स फिंगर में. उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे इनका जो लग्नेश लॉट जो है वो स्ट्रांग हो जाए. एंड सूर्य ग्रहण है, तो इनको ब्लाइंड लोगों को चैरिटी करते रहना चाहिए. किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप, जैसे जहाँ पे भी आई सर्जरीज की जाती है, अगर वहाँ पे आप डोनेशन दें वंस ईयर अपने बर्थडे के बाद, तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा. एंड ऑल्सो ही शुड गो टू होमलेस शेल्टर एंड थर्सडे के दिन या इनको खाना भी डोनेट करते रहना चाहिए ट्वाइस ए ईयर. एंड थर्सडे के दिन अगर आप वेजिटेरियन रहे या जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं उसकी आप पूजा पाठ करते रहे, तो दैट कैन ऑल्सो ब्रिंग ए वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट. Wonderful. Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that he does foresee a little bit of tough time for you, but the business-wise, he's given you the remedies, what would work best for you. Ideally, you need to start wearing a Pukhraj, which is an untreated, unheated, good quality stone, because that will make sure that your planetary positions are aligned. You also need to make certain donations, which is in the blind school, like, small blind surgery, amount can be donated, something that you need to do it yourself. Believe in what you're going to do and try and stay vegetarian on Thursday. There's a small mantra that you need to do before you wear that Pukhraj, and wishing you all the very best. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी प्रोडक्टिव वीक है. आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कंसिडर करिएगा, नए वेंचर्स आएंगे, फिजिकल एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी. बट रिमेंबर थोड़ा रेस्ट और ओवर वर्क मत करिएगा. रोमांस जो है, फ्रेंडशिप जो है फ्लरिश करेगी आप लोगों के लिए. ओपन जो कम्युनिकेशन है वो इन्हेंस करेगा बॉन्ड्स को. फाइनेंशियल डिसीजन जो है बेस्ड ऑन आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर नहीं लेने चाहिए. वेडनेसडे एंड संडे जो है काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स लेके आएंगे. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए आपको कहीं से बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है. लेकिन अपने आप को ग्राउंड करके रखिएगा, अवॉइड करिएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा. मेंटल हेल्थ जो है वो रिक्वायर करेगी अटेंशन इस वीक के अंदर. पीसफुल वीक है फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए. रोमांटिक कनेक्शन जो है इम्प्रूव करेंगे. फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसके लिए आपको एडवाइस करना चाहिए. जल्दी में किसी तरह की भी कोई परचेज मत करिएगा. ट्यूसडे एंड थर्सडे जो हैं आप लोगों के लिए फेवरेबल हैं, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए आप एक्सपेक्ट करेंगे ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन अपने करियर में, बट थोड़ा माइंडफुल रहिएगा कंपटीशन को लेके. एनर्जी लेवल थोड़े फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन बैलेंस रूटीन जो है काफ़ी स्टडी रखेगा. अच्छा वीक है अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं फ्यूचर प्लान अपने पार्टनर के साथ. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉसिबल है, बट अवॉइड करिएगा किसी तरह की भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को लेके. मंडे एंड सैटरडेज जो हैं काफ़ी बेनिफिशियल हैं किसी तरह का भी आप इम्पॉर्टेंट जो कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए आपको फोकस अपना टीम वर्क के ऊपर बनाना है, ताकि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल गोल्स को, तो आप उसको अचीव कर पाएंगे. इमोशनल बैलेंस जो है वो काफ़ी एसेंशियल है. ब्रेक लीजिएगा, अवॉइड करिएगा स्ट्रेस को इस वीक के अंदर. थोड़ा ओपन रहिएगा डीपर कनेक्शंस को. ऑनेस्टी जो है काफ़ी स्ट्रेंथन करेगी आपके बॉन्ड्स को. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन उसको प्रोसीड करिएगा थोड़ा सोच समझ के, जो भी आप कोई बड़ी परचेज कर रहे हैं. थर्सडे एंड फ्राइडे जो है वो आपके लिए अच्छा लक लेके आएंगे. थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस. और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे क्योंकि वक्त आ गया फॉर येट अनदर वेरी स्मॉल ब्रेक. But when we come back, Prem ji is going to read out more emails and tell you exactly what's going on in your life. So don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji has taken his time out
to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode where Premji is going to help out all the viewers who've written into us with such belief and trust in Premji's remedies as to what is really going on in your birth chart, your horoscope, your life, or your business. So let's find out who sent in the next email. Or Premji, agli mil jaye hai. This is from Ashwarya. Date of birth is October 28, 1996. Place of birth is Chennai, India. Time of birth is 10:58 at night. Wants to know about the future and the development with the career growth, marriage, and if there'll be kids after the marriage. Any details that need to be, taken care of now, so all the issues are resolved. And what would the health be and how would she survive or be fortunate in life? This is a very concerned parent and wants your help and guidance. ऐश्वर्या, अगर आप 28 अक्टूबर 1996 इनका चेन्नई इंडिया 10:58 PM का बर्थ है. शी इज़ ए जेमिनाई राइजिंग और इनका मून साइन जो वो टॉरस है, मिथुन लगन है और वृषभ राशि है इनकी. मिथुन लगन का लॉर्ड होता है बुध जो इनके करियर से जुड़ा हुआ है, जो इनके 5th हाउस में सन के साथ बैठा हुआ है. तो कहते हैं 5वें स्थान में जब आपका लग्नेश लॉर्ड बैठ जाए सूरज के साथ है और तुला राशि में है तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है. बुध जो है मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी से, अथॉरिटी से, लॉ से जुड़ा रहता है. दशा गुरु की चल रही है 2017 से जो कि 2034 सितंबर तक रहने वाली है. जुपिटर जो है इनके धनु राशि में इनके 7th हाउस में रिलेशनशिप एरिया में बैठा हुआ है. तो कहते गुरु में बैठ जाए 7वें स्थान में तो सन्यासी योग क्रिएट कर देता है. इट मीन्स रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट या शादी वैसी नहीं होगी जैसे हम चाहते हैं. और ऊपर से गुरु दशा भी चल रही है तो विच मीन्स जुपिटर इज मोर एक्टिव. अगर कहते हैं जिस ग्रह की दशा आ जाती है वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है. बट जुपिटर जो है इस वक्त मरकरी के अंदर ट्रांजिट कर रहा है विच इज़ वेरी गुड फॉर द करियर वाइज. बट जैसे ही 2026 में वो वीनस में जाएगा यानी नेक्स्ट ईयर फरवरी के बाद, तो वीनस इज रिलेटेड टू हारमनी एंड द रिलेशनशिप एरिया. तो उस टाइम पे जो है इनके शादी के जो योग हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर हर. बट लाइक आई सेड गुरु जो है वो इट डजंट सपोर्ट मरकरी जैसे, क्योंकि वो शत्रु प्लैनेट है. तो करियर में जो है एक स्टेबिलिटी रहेगी लेकिन वो ऐसी ग्रोथ नहीं होगी जैसे हम सोचते हैं कि एक एक्स फैक्टर दिखेगा. बट जैसे ही 34 में इनको शनि दशा आएगी उसके बाद से फिर इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ बेसिकली सक्सेस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी वाइज, जिसे हम कहते हैं जी कि बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ विल स्टार्ट एक्चुअली. So then Premji, when will she eventually get married or settle down? What kind of business or work she should pursue? And any remedies as per stones that you tell her? देखिए बिजनेस जो है बुध इज अ मिडिल मैन. या तो अगर आप बिजनेस में तो किसी चीज़ में भी जिसमें यू गेट कमीशन बेसिकली. इफ़ यू आर अ डे ट्रेडर यू मेक मनी ऑन द ट्रेडिंग. अगर आप रियल एस्टेट में तो आप ब्रोकर रेज करते हो. आप फाइनेंस में तो लेंडिंग में यू ऑल्सो मेक मनी. मरकरी इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड मरकरी इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेडिसिन एंड साइंस टू. तो अगर इन एरिया में अगर ये फोकस करें तो जिसमें इनको बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है. एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का. इनको अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड के अंदर वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग रहेगा. जुपिटर 7th हाउस में जैसे मैंने बताया सन्यासी योग क्रिएट करता है तो शी शुड डू ए कुंभ विवाह इन द टेम्पल. लॉर्ड कृष्णा से फेरे लेने चाहिए ताकि वो गुरु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो वहीं ख़त्म हो जाए. मैरिज के योग इनके अगले साल फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे. जो कि 2027 दिसंबर तक रहने वाले हैं. और इनको जो है बेसिकली लॉर्ड शिवा की भी पूजा करते रहना चाहिए. अगर ये मंडे के दिन उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं तो दैट कैन ब्रिंग हर वंडर्स इन हर लाइफ एक्चुअली. Thank you, Premji. So Premji is very, very optimistic for your daughter's future because he believes that her golden yog is coming along. In the meantime, she needs to wear the emerald that Premji has recommended. She also needs to do a Kumbh Viwah where just the parents and her can go to the temple. The Panditji knows what the ritual is. And she has to stay vegetarian when she's wearing the emerald. And besides the other remedies that Premji has mentioned, and you will see so much well going on for your daughter. और दोस्तों
अब वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Prem ji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी क्रिएटिविटी, जो आइडियाज़ हैं वो फुल ब्लॉम में रहेंगे इस वीक के अंदर। एडवांटेज लीजिएगा नई अपॉर्चुनिटीज़ का इस वीक के अंदर। फिज़िकल हेल्थ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, बट इंश्योर करिएगा कि आप स्ट्रेस को भी अच्छे से मैनेज करेंगे। थोड़ी पेशेंस बना के रखिएगा, खास करके लव्ड वन के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन वो ईजिली रिजॉल्व भी हो जाएगा। हो सकता है इस वीक के अंदर विंडफॉल और ऐसा गेन हो जिसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा हो, बट थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ज़्यादा खर्चा मत करिएगा। ट्यूसडेज एंड संडे जो हैं काफ़ी फेवरेबल है आप लोगों के लिए किसी की तरह की भी आउटकम को लेके। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, आप इनकाउंटर करेंगे पीरियड ऑफ जो है स्टैग्नेशन, बट ये अच्छा टाइम है टू प्लान लॉन्ग टर्म जो गोल्स अपनी लाइफ के लिए। फोकस रखिए, मेंटेन करिए बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज करिए रूटीन के साथ, ताकि आपको अच्छे आउटकम मिले। रिलेशनशिप जो क्लोज फ्रेंड और फैमिली के साथ है और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन अवॉइड करिएगा किसी तरह की भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को। फोकस रखिए अपनी सेविंग और अपनी बजट के ऊपर। वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज जो हैं काफ़ी फेवरेबल है जो आपके करियर रिलेटेड मैटर्स के लिए। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी टू शो योर लीडरशिप एंड स्टैंड आउट करेंगे आप अपनी फील्ड के अंदर, बट अवॉइड करिएगा पुशिंग योर सेल्फ टू हार्ड। मेंटल हेल्थ जो है थोड़ी सेंसिटिव रहेगी इस वीक के अंदर। रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो है इंप्रूव करेंगे विद ओपन कम्युनिकेशन के साथ, पर थोड़ा केयरफुल रहेगा अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को लेके। अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो हैं काफ़ी बढ़ जाएंगे। मंडे एंड थर्सडेज आर गुड फॉर मेकिंग डिसीजन एंड इनिशिएटिंग किसी तरह के भी प्लान्स को। एंड पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, ये ऐसा हफ्ता है जिसको आपको अपने फोकस अपने गोल्स के ऊपर, काम के ऊपर करना चाहिए बिहाइंड द सीन्स में। इमोशनल हेल्थ को थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। टाइम टू रिफ्लेक्ट करिए और थोड़ा रेस्ट करिए, और आप काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे अपने लव्ड वन के साथ। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है इस वीक के अंदर। स्टडी वीक है, फाइनेंशियली अवॉइड करेगा फाइनेंशियल रिस्क। ट्यूसडे एंड फ्राइडे जो हैं काफ़ी फेवरेबल हैं आप लोगों के लिए। Thank you, Prem ji. You came to the studio. You helped all the viewers understand exactly what was going on in their lives. And Prem ji has given all of you remedies as per your birth chart. Whatever he saw, he also suggested without the questions that you asked us. Prem ji also gave more information as to what is really going on with you. So you need to summarize that, and that's why we always tell you record our show, because you can always play it back or you can always watch it on the YouTube channel. For now, this is the time where we need to say and take your leave. This is Meher Bhasin along with Prem ji saying namaste. See you next week.